ನೀವೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಮೋದಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರೋ ಜನಪರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಯುವ ಆಕ್ರೋಶ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ನಮ್ಮ ಯುವ ಆಕ್ರೋಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಬಿಗ್ ಪಾಕೆಟ್ ಸರ್ಕಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪಾಕೆಟಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಿಗ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ. ಏನು 2014ರಲ್ಲಿ ಬಹುತ್ ಹೋಗೈ ಮೆಹಂಗಾಯಿ ಕಿ ಮಾರ್ ಅಬ್ ಕಿ ಬಾರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವ ಸ್ಲೋಗನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಂದರು. ಬಹುತ್ ಹೋಗೈ ಮೆಹಂಗಾಯಿ ಕಿ ಮಾರ್, ತುಂಬಾ ಆಗೋಯ್ತು ಮೆಹಂಗಾಯಿನ ಒಟ್ಟ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವಕರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಇಂಥ ಸುಳ್ಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬೀಳಿಸಲೇಬೇಕು, ಇಂಥ ಸುಳ್ಳು ಸರ್ಕಾರನ ಸೋಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಈ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸೇರಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದೊಂದು ಅಭಿಯಾನಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಆಯ್ತು, ಲಾಲ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳು ನಡೀತಾವೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಇದು ಹಲಾಲ್ ಆಗಲಿ, ಹಿಜಾಬ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದು ಅಜಾನ್ ಆಗಲಿ, ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಶುರುವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ವರ್ಷಾಂತರದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಸೋಲುಗಳು ಏನು, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರಚಾರದ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ, ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರ? ಏನು ಪಂಚರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತು, ಬೇರೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿತಾ ಇರಂಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಗ್ ಪಾಕೆಟ್ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಹಿಜಾಬು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವರ ಕ್ಯಾಬ್ ಆಟೋಗಳನ್ನ ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಡೆಯಲ್ಲ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕುರಾನು, ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತಾ, ನಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ಲು, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರೋರು ಕನ್ನಡಿಗರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂತ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ವಿಚಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಡೆಯಲ್ಲ.
ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿನ ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕರು ಏನು failures ಇದೆ ಅದನ್ನ hide ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. कर्नाटक राज्य में कांग्रेस पार्टी ये प्रोटेस्ट कर रही है। ये प्रोटेस्ट इसलिए कर रही है कि क्योंकि ये सेंट्रल बीजेपी गवर्नमेंट और ये मोदी सरकार लगातार पेट्रोल डीजल की दर बढ़ा रहे हैं और एलपीजी आज 1000 रुपये पहुंचा है और ये कच्चा तेल, ये जो ये एडिबल ऑयल और सारे जो प्राइसेस कमोडिटीज़ है वो बढ़ रहे हैं और ये जो आम जनता के ऊपर ये बहुत भारी जुल्म हो रहा है और लोगों के ऊपर ये जो महंगाई बढ़ रही है, लोग जीना मुश्किल हो गया है। इसके खिलाफ में है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी के ये जो भ्रष्टाचार है, बीजेपी का जो ये दिन ब दिन ये जो महंगाई बढ़ा रही है, उसके खिलाफ हम पूरे राज्य में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये झटका हलाल और ये झटका हलाल हो या ये हिजाब इशू हो या एक कश्मीर फाइल हो, ये सब लोगों की ध्यान बटाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट संपूर्ण फेल हो गई है। यहाँ पे करप्शन और ये जो मिस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको छुपाने के लिए ये सब चीज़ें ला रहे हैं। नहीं, ये सब देखिए, ये कर्नाटक राज्य में हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई के जैसे रहे हैं। ये बीजेपी वालों का ये जो साजिश है, ये कामयाब नहीं होगी और ये जो कर रहे हैं वो गलत है। पूरा देश में आज कांग्रेस पार्टी से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ ये जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का भाव बढ़ रहा है, एलपीजी का और गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, फर्टिलाइज़र का, हर चीज़ देखिए, इवन लोहे का, सीमेंट का और होटल का रेट भी बढ़ने वाला है। तो इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन शुरू किए हैं। ये आंदोलन आखिरी तक चलेगा, जब तक मोदी सरकार सत्ता से हटेंगे नहीं, जब तक ये हो रहा आंदोलन चलेगा। ये आंदोलन में कामयाब हम हो जाएंगे, संघर्ष जारी रहेगा। ये जो इश्यूज़ है वो नॉन इशू को उठाना चाहते हैं। हमारे पास बेरोजगारी है, गरीबी है और बहुत कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ में है। उसको छुपाने के लिए केंद्र सरकार ने ये साजिश कर रहा है। कम्युनल इशू पे लोगों को भड़का के हिंदू और मुसलमान के बीच में एक जहर फैला के ये समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे। इसलिए ये सरकार का जो नीति है, ये क्रोनी कैपिटलिज्म के पक्ष में अपना इरादा रखने वाले सरकार गरीबों के खिलाफ है और आम आदमी के खिलाफ है। आम आदमी को कुचलने के लिए, गरीबों को कुचलने के लिए ये काम कर रहे हैं। कर्नाटक के इतिहास के अंदर ये पहली ऐसी निकम्मी सरकार हमने देखी नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी सरकार आम आवाम को जब से ये पावर में आई है और अपने आप को कहती है कि डबल इंजन सरकार, आवाम को इतना परेशान कर रही है कि उनके खाने के वांदे पड़े हैं और उनके जॉब्स के वांदे पड़े हैं, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अखराजात के खर्चे के वांदे पड़े हैं। और ये डबल इंजन की सरकार जो मुंबई जी की सरकार है, ये एक सरकार आम आदमी के खिलाफ बात करती है, आम आदमी के खिलाफ काम करती है, क्योंकि ये इतिहास बताता है इनका। जब जब ये सरकार दुविधा में आती है तो ये कास्ट का कार्ड खेलते हैं। क्यों ये कार्ड इसलिए खेलते हैं क्योंकि आवाम परेशान हो और क्योंकि असली मुद्दे भूल जाएं। हमने देखा है जब जब ये सरकार बैकफुट पे आती है तो ऐसे रिलीजियस मैटर को उठाती है, ताकि हमने देखा है कि हिजाब जो मसला था उसको इतना बड़ा करके एक कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की इन्होंने हलाल और झटके के जो जुबा करने का है वो चीज़ को भी इन्होंने हलाल और झटके का नाम दिया और अवाम को परेशान करने का कोशिश की। और इन्होंने जब जब पेट्रोल प्राइस बढ़ते हैं और डीजल प्राइस बढ़ते हैं, जब जब महंगाई बढ़ती है, तो ये लोग
कई ऐसे मुद्दे लेकर हैं बीच में कि अवाम इनको काम के बारे में पूछे, ना उनको जॉब्स के बारे में पूछे, क्योंकि जब हम पूछते हैं तो इनको जवाब देना नहीं आता है और कोई भी ऐसा रिलीजियस मैटर उठा के बैठते हैं। हमने हाल में देखा है, क्योंकि जब ये सरकार को हमने कठिन से कठिन सवाल पूछे हैं तो अवाम को डाइवर्ट करने का काम किया है इन्होंने जॉब देने का काम नहीं किया। आज हमारे बच्चे 10th पास है, हमारे बच्चे आज PUC पास है, आज हमारे बच्चे ग्रेजुएट पास है और अमेज़ॉन में काम करते हैं, जोमेटो में काम करते हैं। ऐसी हालत बना के छोड़े हैं इन्होंने ना डबल इंजन की सरकार आम आदमी के हित में आज तक इन्होंने काम नहीं किया है। ये बताता है कि आज देखिए किराना का क्या हो गया है, क्योंकि हमारी जो हंडी बनती थी खाने की और सालन की इतनी महंगी हो चुकी है, क्योंकि हमारे जो आमदनी है वो भी घटते जा रही है, क्योंकि सरकार जो मिडिल क्लास लोग हैं इनको काम देने का कोई प्लान नहीं बनाती है और कोई स्कीम्स लागू नहीं करती है। आज देखिए कि LPG का जो प्राइसिंग बढ़ा हुआ है वो 1000 के पार हो चुका है, पेट्रोल का प्राइस 100 के पार हो चुका है और ये गवर्नमेंट इतनी निकम्मी गवर्नमेंट है तो आवाम को परेशान करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों के इलेक्शंस के प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट सिर्फ आने वाले इलेक्शन तक आवाम को इतना परेशान करेगी कि आवाम के खाने के वांदे पड़ेंगे, ना ये गवर्नमेंट जॉब देगी। हमारे बच्चे आज TCH करे हैं, हमारे बच्चे आज BE करे हैं, हमारे बच्चे आज डेंटल करे हैं, हमारे बच्चे आज मेडिकल करे हैं और माँ बाप के खर्चे के ऊपर डिपेंडेंट है। माँ बाप आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं गवर्नमेंट को कि हमारा बच्चा आज ग्रेजुएट पास हुआ है तो उसका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट निकम्मी गवर्नमेंट है। हम बार बार बोल रहे हैं, कई मुद्दे हमने उठाए हैं, क्योंकि गुलबर्गा के शहर के अंदर अलग का मुद्दा उठा के भी इन्होंने नफरत फैलने का काम किया है, क्योंकि इन्होंने जब ये MLAs और MP खतरे में आते हैं तो रिलीजियस मैटर को उठाते हैं। तो हम ये डिमांड करते हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट को डबल इंजन की सरकार को ये पैतरे खेलना बंद कीजिए, क्योंकि पैतरे काम करने वाले नहीं है, क्योंकि अवाम जान चुकी है हिंदू मुस्लिम के अंदर आप डिवाइड करके जो राज करना चाहते हैं। गुलबर्गा की अवाम, कर्नाटक की अवाम, हिंदू मुसलमान एक है, क्योंकि इनके पॉलिसीज़ को हमने जान चुके हैं। आने वाले दिनों में ये हिंदू मुस्लिम मिलके इनकी गद्दी को साफ करेंगे। ये आज गुलबर्गा के तिम्बापुरी सर्कल पे जो एहतजाज चल रहा है ये मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल प्राइस आसमान पे जा रहा है, डीजल प्राइस आसमान पे जा रहा है, किराना पूरा आसमान पे जा रहा है और ये गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है। आने वाले 7 महीने तक यही करते बैठेंगे और यही बेसिस के ऊपर इन्होंने इलेक्शन लड़ेंगे। और आवाम को पूरा पता है कि ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने कर्नाटक में पूरे डेवलपमेंट्स कर चुके हैं। आवाम को ये भी पता है कि हिंदुस्तान में कांग्रेस गवर्नमेंट जब रूल किए पूरे डेवलप कर चुके हैं। गुलबर्गा का मिसाल है, ये ऐसे हॉस्पिटल लीजिए, हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी लीजिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लीजिए, डेवलपमेंट्स लीजिए, हाई कोर्ट लीजिए, सब कुछ कांग्रेस ने डेवलप कर चुके हैं। इनके पास कोई डेवलपमेंट का काम बचा हुआ नहीं है, इसीलिए ये लोग हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं और आवाम को परेशान करते हैं। मैं नौजवान से अपील करना चाहता हूँ कि इनके झांसे में मत आइए, क्योंकि ये अवाम को परेशान करने वाले हैं। ये लोग आपको रोज़ी नहीं देंगे, ये लोग आपको काम नहीं देंगे, क्योंकि आपका ग्रेजुएट, आपका मास्टर डिग्री सब कुछ वेस्ट करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर ये लोग सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करेंगे, क्योंकि इन्होंने ट्रेन से बेचा है, एयरपोर्ट बेचे, बैंक बेचे हैं, सब कुछ बेच चुके हैं इन्होंने। आने वाले दिनों के अंदर ये सिर्फ प्राइवेटाइजेशन काम करने वाले हैं। तो हम नौजवानों से यही अपील करते हैं कि आप लोग रोड पे आइए, क्योंकि इन लोगों को आने वाले दिनों में जॉब्स के बारे में हम डिमांड करेंगे, ताकि ये अवाम हम खामोश, ये अवाम को ये समझ बैठे हैं कि हम लोग खामोश बैठे हैं। हम लोग खामोश नहीं बैठे, क्योंकि हमने आपको सरकार में जगह दी है कि आप काम क्या करेंगे, क्योंकि ये मैसेज जा रहा है कि आपने सरकार में रहते हुए कोई काम नहीं किया है। सिर्फ आपने जो कांग्रेस गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है उसको आपने ख़त्म कर चुके हैं और माइनॉरिटीज़ को आपने कोई स्कीम्स लागू नहीं कर चुके हैं, और जो आपने जो करप्शन किए हैं उसके भी फैसले आने वाले दिनों में खुलेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, ये अवाम को पता है। 108 रुपये था वर्ल्ड मार्केट में, यहाँ 55 रुपये डीजल, 71 रुपये पेट्रोल, 400 रुपीज़ सिलेंडर का रेट था। जो मोदी साहब आए, अच्छा दिन लाए, ये देश में ना खाऊंगा ना खिलाऊंगा बोल के बोले, ये बोलने के बाद आज जो है ना सिलेंडर का रेट 1000 के ऊपर बढ़ गए और पेट्रोल डीजल में भी ज़्यादा बढ़ गए और 30-35% टैक्स डाल रहे। इससे टैक्स से वसूली 26,00,000 रुपीज़ कलेक्ट हो रहे हैं। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये पैसे खा रहे हैं, अदानी अंदानी को फ़ायदा हो रहे हैं, ये देश में लूटी कर रहे हैं। इसलिए अब रसगोबर का रेट भी बढ़ गए,
200 रुपये एक थैले को बढ़ गए। इतना पैसे पूरा खा रहे हैं, पूरा लॉस कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। पब्लिक सार्वजनिक बहुत लोग परेशान में है। इसलिए हमारा केपीसी आदेश के मेरे में ये आज जो हम सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के ये महंगा हुआ इसको कम करना तक हमारा होराट रहेगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष हमारा जगदेव गुत्तेदार साहब और BR पाटिल साहब और तेपन पकमक चंद प्रकाश पाटिल, ये हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व जो चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, उसके तरफ से हम पूरा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से तरफ से मोदी सरकार और बम्बई सरकार कब तक इसका सब्सिडी कट करना, सब्सिडी दे के हमको डीजल पेट्रोल और सिलेंडर कम रेट में दिलाना और महंगा हुआ तो रेट को उसको कम करना, ये जब तक नहीं होता जब तक हमारा होराट आगे